Okay. So, a very good afternoon to all the respected teachers and geeks. I, Himanshu Pathak, student of third year CSE RJIT and BabDev head of RJIT Geeks, welcome you all to the orientation session of only successful coding club of RJIT, the RJIT Geeks. This orientation has been in the works for past few weeks, and today we are conducting the orientation session of RJIT Geeks so that all of you get to know about coding community in your college. So once again, welcome to the orientation session of RJIT Geeks. Firstly, I would like to extend gratitude on behalf of all the members of RJIT Geeks to our respected Jagdish sir, HOD of CSE department, who always support us in all the geeks member to conduct different tech contests and always motivates us to do coding. So it's always a blessing for us to be a part of RJIT Geeks. Now, I request our president of RJIT Geeks, Rishabh Jain sir, to give brief introduction to all the geeks about RJIT Geeks. या थैंक यू हिमांशु सो अभी हम लोग बात कर रहे थे मेरा इंट्रोडक्शन है माई सेल्फ ऋषभ जैन एज हिमांशु टोल्ड सो आई एम करेंटली सर्विंग एज president right now in this year. So my few achievements are I have worked as a ex intern at Geeks for Geeks. Geeks for Geeks क्या है? आप जैसे वर्ल्ड पूरी दुनिया की पूरे वर्ल्ड की नॉलेज के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया होती है, बड़ी बड़ी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनमें रखी हुई है दुनिया में अलग अलग जगहों पे. तो वैसे ही पूरी दुनिया की जो कोडिंग नॉलेज है वो गीक्स और गीक्स है. वो एक एनसाइक्लोपीडिया है कोडिंग कोडर्स की और टेक्नोलॉजीज की, AI ML अलग अलग. अभी हम सब आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, राइट. मैंने गूगल का कोड जैम कॉन्टेस्ट दे रखा है, राइट. और मैंने नेशनल ऑल इंडिया रैंक 15 सिक्योर कर रखी है. एक रोबोट रोबोट के कंपटीशन में हम पूरी टीम गई थी. सो वी हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 15 इन दैट. सो to give a next, to give you a basic idea about what is RJIT Geeks. So here is what I would say, that RJIT Geeks is nothing but a peer to peer learning platform. मतलब हम जो जूनियर्स हैं, जो फोर्थ ईयर में हैं, वो अपने थर्ड ईयर वालों को सिखाते हैं, थर्ड ईयर वाले सेकंड ईयर वालों को सिखाते हैं. क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, जो यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसमें नहीं है. फॉर एग्जाम्पल C++ से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा सब बताएंगे आपको. सो वी टीच ईच अदर. हम अपने बैचमेट्स को पढ़ाते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं अपने कोडिंग के, और हम उस ग्रुप्स में अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं, राइट. पढ़ाई इन द सेंस वो वाली नहीं, कोडिंग वाली पढ़ाई. सो या नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क गौरव सर टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. Everyone. First of all, I would like to thank you all for joining. So my name is Gaurav Singh Baghel, currently working as a vice president in RJT Geeks. I'm a competitive programmer, and few of my achievements are that is currently I'm working as a associate software developer engineer in L6 India, and including it, I have been qualified for Facebook. Facebook, it's a Facebook Hacker Cup. That's an uh, a very I can say toughest programming contest. I've been just qualified for it. I don't I will say that most of the members of RJ Geeks have been qualified for it, and including it, I'm a 3-star coder qualified for Google Code Gem, as well as, and including it, I am a semi-finalist at Code Creators. Okay, so this is the all about my achievements. Okay, so let's talk about the things like अब हम करने क्या वाले हैं. Okay, why we are here, why you guys are came for now. So actually, I just wanted to say we are on we are just what we want now. हम क्या चाहते हैं? We just wanted to change our coding culture of the coding environment of our college. Okay, so actually, जो students होते हैं ना, they have the power. They can change anything. Okay, if you want to change anything in your campus, don't say that we are from tier 3. We are not having some much of opportunities. हमें उतनी opportunities नहीं मिलती, हमें ऐसा नहीं मिलता. Don't say like this. You are a student, you can change anything. So okay, so we are on a mission. We want to change the whole coding culture of our college. Okay, from past 4 years, like from past 3 years, we are trying that, and we are trying our best
to give best to the children. We are teaching them, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, and they are literally achieving lots of things. Okay, so this we are on the mission that we want to change the college environment for the coding. We want to change the college coding environment. Okay, so this is from my end. Now, again, I would like to call Himanshu to Yes. start again. Okay. Thank you, Rishabh sir and Gaurav sir, for your Yeah. motivating words. Yeah. So Thanks. I introduce Chirag sir. Is also a senior member of RJIT Geeks. He is a Gold Microsoft Learn Student Ambassador and a speaker at Cloud Summit 2021. And we have another member as a senior member of RJIT Geeks, Vanchika ma'am. She is a semi-finalist of Geek Goddess 2K21 and a finalist of MIT Coding Fest 2K20. And next we have Shobham Devrani as a CP head of RJIT Geeks. Next, Varat Khogle, App Dev head of RJIT Geeks. Next, Stuti Verma, data science head of RJIT Geeks. Next, Vishal Shivare, artificial intelligence and machine learning head of RJIT Geeks. It's me, Himanshu, web dev head of RJIT Geeks. Next is Ayushman Pathak, cyber security head of RJIT Geeks. And we have 6 executive members of RJIT Geeks: Adarsh Mishra, Shobhit Rawat, Alok Dwivedi, Nupur Sapra, Nayan Das, and Sapna Jha. So these are the some picks. United we code. So first picture where all the geeks member discussing about the geeks classes and contests that they are going to conduct for geeks member. And another picture is from where we have represented RJIT in an international coding competition, and it is one of the great achievements. And this is the pic where we have participated in an inter college coding competition. And next, yes. So these are the some pics where we are all the geeks member discussing, and this is the geeks all the way where all the senior members share their experiences from their coding international or national coding competitions with the student about the all the coding competitions, how to participate, and how to do coding. So these are the some pics from our classes. Now I would request our Vice President of RJIT Geeks, Gaurav Bhagel sir, to aware you all about what we have earned as a member of RJIT Geeks. Okay, so hello again. So that's now I would like to inform you. I just wanted to tell you about that how many coding achievements or whatever the achievements we are holding right now, and we are preparing for the best for now. Okay, so what is ACM ICPC? We have represented our campus at ACM ICPC. ACM ICPC is the world level international programming contest. We have Kogel Code Jam achievements. We have Hacker Cups achievements. Facebook Hacker Cup is one of the toughest coding competition in the world. We are not the finalist, but we have qualified for it just on site rounds. Okay, and including it, we are some of our members are Microsoft Learn student ambassador. They are gold ambassador, gold members in whole over the India. There are only 10 to 20 gold members from all over the NITs, and one of them from our campus also. He's a member of RJIT Geeks. Including this, we have represented our campus at Srijan hackathon. It's a MP level, state level hackathon. We have participated here, including it. Some of our girls are women tech maker scholars also. Including that, we have been gone through Try Hack Me contest. It's mostly conducted for the cybersecurity experts, and including it, we have been a chapters. We are holding CodeShift campus chapter, and we are Microsoft Learn student ambassador as well as. Okay, so these all are the achievements we are holding right now, and we are moving forward for the great one. Okay, we are preparing for better one. Okay, so this is all about the achievements. Now I would like to call Himanshu again so he can start. Yeah, Himanshu. Yes, sir. Now I request Rishabh sir Yeah.
सो yes. आप लोगों को मैं आगे बढ़ने से पहले एक कोड थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैं देखता हूँ आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो, कितना आईक्यू से आप लोग इस चीज को सॉल्व करोगे. सो बिकॉज RJIT geeks, we are the good minds of RJIT geeks. We are the best minds from RJIT. So आप लोग में से जिसने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया उसको एक छोटी सी गुडी मिलेगी लास्ट में. सो आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि इस टी शर्ट में कितने होल्स हैं. जो पहले सही आंसर देगा फर्स्ट ईयर चैट बॉक्स में 6 सर. 6 सर 4. सर 8 4 वाली. सर 8 सोचो 4 कौन बोल रहा है. वो 8 सर 8. 8 6 8 सर 8 8 ओके 8 ओके. सो प्रशांत कुमार सिंह हैज गिवन द राइट आंसर मेरे क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही आई गेस. सो 8 इज द करेक्ट आंसर. सो इसमें बस थोड़ा सा सोचना था अपन को कि एक तो आर्म्स में है 2, एक नेक वाला 3 और एक बॉटम वाला 4 तो ये हो गए. अभी जो इसमें से जो फट रही है शर्ट, जो टीयर डाउन हो रहा है, उसमें से सामने से 2 दिखेंगे, पीछे से 2 दिखेंगे, है ना. तो 4 + 2 कितने हो गए 8, राइट. सो 8 आर द टोटल नंबर ऑफ होल्स इन दिस टी शर्ट. सो या जस्ट फॉर फन या. So आप ये कैसे कह सकते हो कि वो होल्स हैं? ओके वो नीले रंग का पेंट क्यों नहीं हो सका? तुमको नीले क्या रंग का दिख रहा है? पेंट क्यों नहीं हो सकता? हाँ ये भी सही वो बात है यार. पेंट है नहीं. नीले रंग का पेंट भी हो सकता है. दैट्स अ गुड पॉइंट. बट चलो ठीक है, मेरे को अपना प्रॉब्लम थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करना चाहिए था. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से डिफाइन करूँ. अभी आगे और भी प्रॉब्लम्स मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है. तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट. सो हिमांशु, नॉट ब्लॉकिंग द फ्लो, प्लीज कंटिन्यू. Yes, sir. So now it's time to explore with some different fields of IT domains. So for that, first of all, I would like to invite Bharat for aware you about competitive coding and what are its benefits. Yeah, so good afternoon. So, what is competitive programming? As the name suggests, it's programming with a flavor of competition. It is a mental sport in which people compete with each other by solving coding competitions, coding problems, right? Platform like CodeChef, CodeForces, LeetCode regularly conduct contests which are set of few problems which we have to solve within a given span of time. Once you write code, then they have designed an online judge which will validate your solution and give you a verdict on whether which your solution is right or wrong. Then you are ranked on the basis of the problem you solved, how quick you were to solve that problem, right? So solving these problems require some knowledge of algorithms and data structures, and these problems are designed to check your problem solving ability. So main question arises, why competitive programming? Firstly, competitive programming is fun. There is a delightful feeling when you see a green tick and when your solution gets submitted successfully. Secondly, there are many indirect benefits of it. First, improvement in problem solving skills, logic building, and even pressure handling if you solve time bounded competitions questions. Third, and the most common one, is that if you aspire to work in a product based company or FANG, that is Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google, that is FANG. So as they require a strong hold on data structures and algorithm. Motive of competitive programming is to sportify programming so that it will be a fun, and once you start enjoy something, you spend more and more time on it. So that was competitive programming is. Now I would like to call upon Stuti to give some words on web development. A very good afternoon to everyone. I will be explaining about web development. So websites are something that we all already know and have been using it for various purposes. But the thing is, do we know how are these websites were made? And what are the various tech stack and developer tools used in making these websites? So
I think all of you have must used YouTube, whose server-side language is Python. So why I have given this example is to make you clear that we can use these technologies and many more developer tools that have been used in making these popular websites like YouTube, Facebook, and many more. Like same just to dive into the web development field and explore it. So you all will be wondering like how these websites work. I will explain it in very simple language that a website at most is a bunch of files that is stored at a computer called web server and that is connected to the internet from where we can load into our computer through web browsers like Chrome and Safari. In short, web development is just the process and work involved in making these websites. So if you are exploring for web development, you can opt for front-end development, which is the part where which the user sees and interact with, like the Chrome in which browsers you see the websites. This is the part of a or work of a front-end developer. And the second one is back-end developer work. You can opt for any for this, or if you want to work as both front-end and back-end developer, you can go for full stack development. Yeah. So for making a appealing and alluring websites, these are the technologies and developer tools that we can use that like HTML, CSS, and JavaScript is used for making a front end and various frameworks and various frameworks like React.js, Flutter, Angular, which is developed by Google. And for backend development work, we can use PHP, JavaScript, Node.js. These are the some backend languages. Now, for the next part, I would like to call Vishal to brief you all about the next field that is AI ML. Hey everyone, my name is Vishal Shwere and I'm a AI ML head of IJT Geeks and president of CodeChef IJT chapter. Now I'm going to explain that what is machine learning. Okay, so have you guys heard about Jarvis or Sophia? Anyone? You can respond in the chat. Yeah, Sophia is a robot, maybe. Yeah. Jarvis is from Iron Man. Yeah. Marvel movies सब लोगों ने देखी है ना? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So Jarvis is something like हम लोगों ने उसे सिर्फ मूवीज वगैरह में आयरन मैन के उधर देखा है, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम जारविस जैसा कोई सिस्टम बना सकें? अर्लियर ये पॉसिबल नहीं था, बट नाउ इट इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So you guys have heard about artificial intelligence, I think a lot. There are like what is artificial intelligence and why it is why there is so much scope in it. We people usually say there is so much scope in it and बहुत अच्छी जॉब लगेगी, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह मिलता है इसमें, and it is so much popular now. So let's just try to understand that what is artificial intelligence. If we look at the term that is artificial intelligence. So what do you mean by artificial? Artificial means something that is not natural, that is man-made, right? And intelligence means something that the ability to understand, think, and learn. So on combining these both terms, we get to a point that where we get the definition that that there is something device that have human-like intelligence, right? So why artificial intelligence is getting too much popular nowadays? Why? Because of the new algorithms and the advanced algorithm that is increasing day by day, and the improvement in computing power and storage, and due to the digitalization, we have a lot of that data, and data is like a oil for artificial intelligence. So because of all these things and advancing, we are getting advanced in all these things. So we are exploring this AI field now, and it is I think transforming that the whole industry by
by using its cut as technologies. Like we all know about the Alexa. You know, we just talk to and just speak like I wanted to register a movie ticket over there, and you know, it just get registered. And nowadays we see website there are chatbots over there, right? That are AI enabled. And we now, and I think the most common thing about AI we can see in daily life is the AI enabled cameras, where we see like we have the face lock in our cameras. So that all these things are because of the AI. And these the tech behind all these applications of AI is image recognition and a lot of the things. So so this is all about the artificial intelligence. Now I would like to call Shubham to speak few words on the Android. Thank you, Vishal. Good afternoon, everyone. So, mobile app development, pretty simple term, right? Apps तो हम सब ने यूज किए हैं, हम सब देखे। तो सबसे पहला ऐप तो हम जो मोस्टली यूज करते ही हैं वो व्हाट्सएप है, ठीक। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लेमन लैंग्वेज में बोले इज द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल फोन्स और सिमिलर डिवाइसेस। इसमें बेसिकली दो टाइप की डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट इज द नेटिव ऐप डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज द हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। तो native app development, you all know, we mostly have just two OS, Android one and an iOS one. So in native app development, we develop purely an Android application or purely an iOS application. Okay, but in hybrid, we have facility of writing code just once and developing apps for both the platforms, Android as well as iOS. I think this field will really excites you because Chintu being so small is also developing the apps, right? So why can't you? Okay, with that, I would like to call Ayushman to tell you about cyber security. Yeah, sorry to interrupt, Shubham. I would like to ask a little question in between. As we have discussed some coding part like web development, app development. So can you please, Shubham, can you please open that image? Yeah, next image, please. Next one. Next one. So which question? Yeah, this one only. The previous, this kind of question only. It was Richie Rich one. Yeah. I think you don't have to. Okay, but okay, no problem. So the previous one was also fine. Yep. Yeah, this one. So कोई गैस कर सकता है इसमें किस पर्सन की बात हो रही है? चारों जो कॉर्नर्स में जो फोटोज हैं उसको देख के चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो। नील। चैट बॉक्स में लिखना है प्लीज, आपको कंसिडर नहीं करेंगे अदरवाइज हम ये चैट बॉक्स में ऐसे ही नाम उठा सकते हैं हम। एक्चुअली ये हमने चार पिक्चर्स को यूज करके एक और कोई गैस? नील बोर। ओके या सब लोग नील बोर लिख रहे हैं या तो सही होगा, नहीं सही है। सो अंकुश शर्मा इज द फर्स्ट वन टू रिप्लाई। सो या आई राइट इट डाउन, अंकुश शर्मा। ओके फाइन। सो या इसका आंसर नील बोर था क्योंकि ये एक्टर है, ये बोर दिख रहा है हमें मैप्स पे 1913 में। चलो फिर या शुभम, then sorry to interrupt, and I'll ask Ayushman to describe about the next technology, please. Okay, so I would like to tell you about what is cyber security. So cyber security is a process that designed to protect networks and devices from external threats. Businesses typically employ cyber security professionals to protect their confidential information, maintain employee productivity, and enhance customer confidence in products and services. So I have a statistics that suggests 64% of companies of all sizes have already experienced a web-based attack. So to manage this, we actually need cyber security professionals, and
there are various fields inside cybersecurity, like network security, application security, mobile security, malware spyware analysis, risk audit management. So these fields needs professionals to work on, and actually there's a large need for this. So if anybody interested, we will be conducting more of these sessions in future. And now I would like to call Nupur to explain you more about IoT, that is Internet of Things. Thank you, sir. So good afternoon, everyone. I'm Sapna Jha, student of IT department and member of RJIT Geeks, and I'll be discussing about IoT. So until recently, access to the internet was limited via devices like desktop, tablet, or smartphones. But now, appliances can be connected to the internet and monitored remotely. So what IoT is? What is the concept of IoT and what it actually does? So basically, IoT is about connecting just everything to the internet in real time, which directly improve our quality of life and experiences. For instance, how you are watching me on a PC, mobile, or tablet. Well, whichever device you're using, it's definitely connected to the internet, and that means you're already using an IoT device. You have also heard about some new technologies that are quite famous nowadays. Those are Google Smart Home, smart lights, switches, smart locks. So all of these things are applications of IoT, and there is so much more in this field. Let's take some more examples like doorbells, water heaters, smartwatch, smart car, air conditioner, etc. So this is IoT in short, and if you find yourself interested in this field, you can do research and yeah, you can go for it. So thank you. Now I would like to call Shobit to give a preview about big data. Yeah, before that, someone was asking in the chat that is this RJD Geeks only for IT and CS? Yeah, so now you have must guessed it right? As Sapna has told us that what is IoT, and sure we are going to discuss these topics in our classes and explore these in our coming session of RJD Geeks only. So yeah, so electronics, electricals, all of you from different branches, प्लीज RJD Geeks is for you also. IoT में बहुत सारी स्मार्ट कार्स आती हैं राइट, फॉर इलेक्ट्रिकल फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स में तुम लोग जानते हो विप्रो जो कंपनी है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये सब इलेक्ट्रिकल्स की कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर बनाती हैं ये लोग, अपने स्मार्ट बल्ब्स बनाते हैं है ना, स्मार्ट एलेक्सा वगैरह ये सब है ना. सो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एसीज वगैरह एंड ऑल दैट. सो या, सो प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू सर. सो आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट बिग डेटा. तो बिग डेटा समझने से पहले हमको डेटा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट? तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी हम डे टू डे लाइफ में डिजिटली कर रहे हैं वो सब डेटा है. हर चीज हर सेकंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट हो रहा है एंड कहीं स्टोर किया जा रहा है. जैसे आज हमने मीट ऑर्गेनाइज कराई, उसमें कितने स्टूडेंट हैं, कितने ड्यूरेशन तक चली वो मीट, ये सभी एक डेटा है. एंड इन सब डेटा में से यूजफुल चीज सेलेक्ट करके एंड उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन बड़ी कंपनी में यूज की जाती है. जैसे तुम लोगों ने काफी बार नोटिस किया होगा, जैसे मैंने कुछ चीज सर्च की फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में, लेट्स से मैंने सर्च की HP के लैपटॉप, तो थोड़ी देर बाद मेरे को अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे HP रिलेटेड चीज कंटेंट दिखेगा, जैसे HP लैपटॉप प्राइस ड्रॉप, इस टाइप की चीजें नोटिस किए हैं, मतलब इसी टाइप से. तो इस तरह से बिग डेटा क्या है, हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है. तो हर चीज इसी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि डेटा बिग डेटा है. फर्स्ट, बिग डेटा ह्यूज वैरायटी में होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऑडियो नहीं होनी चाहिए, ऑडियो, वीडियो, लाइक, कमेंट, सब टाइप का डेटा जब कलेक्शन में आता है तब वो बिग डेटा बनता है. सेकंड, अपलोडिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड तेज होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि जैसे डेटा इकट्ठा तो हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन वो अब चेंज ही नहीं हो रहा, काफी टाइम तक वही है. तो अपलोडिंग और प्रोसेसिंग स्पीड तेज होनी चाहिए, हर टाइम चेंज होता रहे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉल्यूम हाई कैपेसिटी में होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ GB. सो that's the brief intro about big data. Now I would like to invite Nayan to brief you about blockchain. So thank you, Sobit. Hello everyone, I'm Nayan Das, an executive member of RJT Geeks. So first of all, मैं बताना चाहता हूँ कि सबको पता होगा ब्लॉकचेन क्या होता है, मतलब ब्लॉकचेन के रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही होगा किसी ना किसी को. लाइक क्रिप्टो करेंसी, लाइक अभी तो बहुत हाइप है, पता ही होगा.
तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन से। तो ब्लॉकचेन के बारे में बताता हूँ पहले। लाइक ब्लॉकचेन is a system of recorded information which is present in a decentralized and distributed way। मतलब इ- इस तरीके से ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि कोई भी इस नेटवर्क पे कभी भी घुस सके एंड इसके बारे में जान सके, बट इट इज रियली टफ टू चेंज एंड हैक और चीट द सिस्टम। ओके, सो नाउ जो ब्लॉकचेन होता है वो काम कैसे करता है? तो ब्लॉकचेन जो होता है वो एक्चुअली ग्रोइंग लिस्ट होता है रिकॉर्ड्स के, जो जिसके अंदर ब्लॉक्स रहते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक रहते हैं। मतलब हर एक ब्लॉक एक और ब्लॉक से, अपने प्रीवियस ब्लॉक से लिंक्ड रहता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। ठीक है, हर एक ब्लॉक अपना खुद का क्रिप्टोग्राफिक हैश कंटेन करता है, अपने प्रीवियस ब्लॉक का क्रिप्टोग्राफिक हैश कंटेन करता है, एक ट्रांजैक्शन डेटा वो कंटेन करता है, एंड जो टाइम स्टैम्प है वो कंटेन करता है। तो ये हो गया ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो अब लाइक आजकल लाइक जैसे मैंने अभी जैसे बताया कि क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन बहुत यूज होता है। तो लाइक हम सबको पता ही होगा लाइक क्रिप्टो करेंसी क्या है। लाइक बिटकॉइंस हो गए, बाइनेंस हो गए, फिर इथेरियम हो गए। तो जो आजकल में ब्लॉकचेन जो होता है मेजरली यूज होता है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पे। ठीक है, जैसे बिटकॉइन, बाइनेंस, इथेरियम हो गए, उनके खुद के ब्लॉकचेन्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए तो हम एज अ बिगिनर या फिर एज अ लाइक हम लाइक लर्निंग कोडर्स है हम। लाइक अगर हम फ्यूचर में कभी प्रोजेक्ट करना चाहे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लाइक बेसिकली हम कुछ सिस्टम बना सकते हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ब्लॉकचेन के थ्रू। फिर वोटिंग सिस्टम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। वोटिंग में आपको पता ही होगा बहुत बार क्या सब चलता है। तो लाइक वोटिंग सिस्टम बना सकते हैं, लाइक बहुत सिक्योर होता है ब्लॉकचेन, क्योंकि होता है सिक्योर तो वोटिंग सिस्टम भी सिक्योर हो जाएगा उसका अगर हेल्प उसके मदद से अगर हम यूज़ करें। ठीक है, फिर डिफरेंट सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हैं, फिर पेमेंट्स वॉलेट बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क हिमांशु सर अगेन टू कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू नयन। सो आर यू ऑल रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन? चैट बॉक्स पे यस सर लिख कर बता दो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। एक बाइसिकल है, ठीक है, उसके दो पहिए हैं और तीसरा पहिया एक एक्स्ट्रा में है उसके साथ में रखा हुआ, जैसे कि स्टेपनी वगैरह होती है ना वैसे। एक पहिए की कैपेसिटी है कि वो 5 किलोमीटर तक ही चल सकता है, उसकी लिमिट है। तो बताइए हम ऐसा कैसे, इन तीनों पहियों का ऐसा कैसा यूज करें कि हमें मैक्सिमम पाथ हम कवर करें, और वो मैक्सिमम पाथ कितना होगा वो आपको बताना है। आपके पास 2 मिनट्स हैं। और एक टाइम पे दोनों टायर एक साथ चलेंगे ना? हाँ, बाइसिकल में 2 पहिए तो रहते हैं चलने तो के लिए। दोनों एक ही टाइम पे वॉर्न आउट होंगे, ये भी हाँ एक हाँ, ध्यान है। नहीं नहीं, 2 पहिए साथ में चलेंगे, तीसरा हाँ पहिया साथ एक और है एक्स्ट्रा में, ऐसा। ओके, मीन साइकिल के दो पहिए है ना, अगर वो हम्म। चल रहे हैं तो दोनों पहिए मतलब दोनों पहिए की लिमिट लगा के चलेंगे। हाँ, ये 5-5 किलोमीटर चलेंगे, हाँ, वही टोटल वही 5 ही चलेंगे। वही वही तो दिमाग लगाना है कि हम्म, मैक्सिमम कितना होगा। राइट राइट, गुड क्वेश्चन। एक एक व्हील की लिमिट 5 किलोमीटर है, हाँ हाँ राइट? हाँ हाँ हम पहले 2.5 किलोमीटर 2 पहिए से चल लेंगे, ठीक उसके है, बाद तीसरा यूज करेंगे, ठीक है, फिर एक पहिए की 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की लिमिट खत्म हो जाएगी ठीक दोबारा है, जब 2.5 किलोमीटर चलेंगे तो। ठीक है। लेकिन जब हमने पहले वाले को निकाल के रख दिया था उसको हम्म, यूज करेंगे तो दोनों जो लास्ट के 2 बचे रहेंगे उन दोनों का 2.5 किलोमीटर यूज हो जाएगा। आंसर तो क्या इस है? तरीके से हम लोग यूज ठीक है, करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने आदर्श। 7.5 किलोमीटर का आंसर होगा। बट सबसे यस। पहले जिसने आंसर दिया वो है रोहित खटीक, और बहुत बढ़िया। तो चलो चलते हैं आगे। सो या जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये बस जस्ट फॉर फन पूछ रहे हैं, बट अभी कोई अगर इसको आंसर्स नहीं कर पा रहा, नहीं सोच पा रहा, तो देयर इज नो पॉइंट टू डिस्करेज योरसेल्फ, है ना। हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रोग्रामिंग और ये सब जो हम कोडिंग वोडिंग करते हैं, जो आईटी सेक्टर ये सेक्टर हमारी फील्ड्स में होती है, ये थोड़ा इसका आइडिया, बेसिक आइडिया हम आपको देने वाले हैं कि क्या होता है और आप लोग क्या कर सकते हो इसको या फिर नहीं कर सकते हो। ये मैथ्स की तरह होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री किसकी तरह होता है, तो इसका आइडिया हम आपको नेक्स्ट देने वाले हैं। वो जो आइडिया आपको देंगे वो तो सब ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सो प्लीज हिमांशु कैरी ऑन। यस, कुछ लोग इसका आंसर पूछ रहे हैं हाउ रीजन। मैं बताता हूँ आपको। पहले 2 पहिए हम 2.5 किलोमीटर चलेंगे, उसमें से फिर एक पहिया निकालेंगे और तीसरा वाला जो पहिया है वो लगाएंगे और फिर दोबारा 2.5 किलोमीटर चलेंगे।
तो जो पहला पहिया था उसके 5 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, और जो हमने पहले लगाया हुआ था जिसको हटा दिया था उसको दोबारा लगा देंगे। तो ऐसे हमारी 2.5, 2.5 और 2.5, तो ये 7.5 किलोमीटर रेंज हो जाएगी हमारी। गॉट इट? ओके। यस सर। ठीक। यस शिवम। So now we have next part is hackathons. So hackathons are where your crazy idea becomes reality. So as a member of RGIT Geeks, we have enhanced ourselves and get to come in touch with the modern technologies. Our team from RGIT Geeks have represented RGIT in great hackathons of our country like Rajasthan Hackathon, Hack with CW, Smart India Hackathon, and Sreesan, and many more. And we have not just participated, but also we won first position in Sreesan Hackathon. And the most important thing we get from hackathon is knowledge, skills to represent your idea in front of audience that boost your confidence as an individual. और आने वाले समय में भी फ्यूचर में भी हम ऐसी कोई भी सिंगल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे जहां से हम कुछ सीख ना पाए। नाउ आई रिक्वेस्ट Vishal for giving further information about the campus chapter and our collaboration with Tech Giants. Hello everyone. Can you hear me? Mm-hmm. Yeah. Yes. So, have you guys heard about CodeChef? Anyone? It's Yes, okay if sir. you're not What? there. Yes, sir. Yeah. So we have a collaboration with the RGIT CodeChef RGIT chapter and ASAF. What is CodeChef RGIT chapter? CodeChef RGIT chapter is a programming club that is maintained by the official chapter leaders and under the mentorship of the CodeChef itself. What is CodeChef? CodeChef is a competitive coding platform where people around the world take part in the competition and enhance and sharpen their skills, problem solving skills. Okay, so the aim of the CodeChef RGIT chapter and RGIT Geeks both align together. That is to build a competitive programming culture by fostering learning and problem solving skills. The members of the RGIT Geeks are the 4 chapter leaders of the CodeChef RGIT chapter, and we have the collaboration with the ASAF, which is the programming club of IIIT Gwalior. I think you guys have heard about it, IIIT Gwalior, right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So we get so many resources from over there. Like we can participate in their events, and we can also take resources like we can ask speakers from there, and there are a lot of the courses and all these stuff that we can get from ASAF. So with these the collaboration of RGIT with these two things make it very unique and a more conducive environment for all of you to enhance your skills and sharpen your skills. Now I would like to call Manshu. Thank you, to Vishal. carry on the- Okay, thank you, Vishal. So now I request Alok to give you a little introduction about our classes Let's Code 6.0. Yeah. Thank you, sir. Good afternoon. Yeah, Alok, can you please wait a minute? Yes. Okay, thanks. So Shubham, do you have that question in your mind about the balancing of two? Yes, sir, I have. So yeah, shall we ask then? Okay. Everyone ready for one more question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. I'll ask. This question is basically a logical problem, okay, which will give you some essence of logics used in programming, right?
तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, आपके पास 7 बॉल्स हैं, ओके, यू हैव 7 बॉल्स एंड यू हैव अ वेइंग मशीन, तराजू देखा है ना, जिसमें दोनों साइड डालते हैं सामान, तो वो जिस Yes, साइड sir. भारी होता है Yes, उस साइड sir. झुक जाता है, ओके। तो तुम्हारे पास 7 बॉल्स हैं, तुमको उनमें से एक बॉल का वेट ज्यादा है, बाकी सारी का इक्वल है, मतलब कोई 6 बॉल्स का इक्वल होगा, एक बॉल का वेट ज्यादा होगा, राइट। तो तुम्हें उसको वे करके निकालना है कि कौन सी बॉल हैवी है। साइज सेम है तो तुम देख के पहचान नहीं सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि कौन सी बॉल हैवी है। अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 बार तुम उसको वे कर सकते हो बॉल्स को, ठीक है, जस्ट 3 टाइम्स, ओके। तो कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? You have just 3 Hello. chances. Yes, sir. Yes, sir. Sir. एक्चुअली अभी Hello. इसको सिस्टमैटिक वे में करने के लिए अब आपको हम 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट तक कोई आंसर नहीं बताएगा, 2 मिनट के बाद हम पूछेंगे, जो कंफर्म है वो पहले चैट बॉक्स में यस लिखेगा, Sir, yes, sir. Yes, फिर हम sir. उसको माइक ऑन करके पूछेंगे। Take your time. Take your time. टेक योर टाइम राइट फॉर नाउ। क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर दे शुभम, जिससे ओके, मैं रिपीट सबको करता क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास 7 बॉल्स हैं, उनमें से 6 बॉल्स का वेट सेम है, एक बॉल का वेट ज्यादा है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक तराजू है जिसमें वे कर सकते हो तुम, ठीक। तो तुम्हें उनमें से जो सबसे हैवीएस्ट बॉल है, जो बॉल है सबसे हैवीएस्ट, वो फाइंड करनी है, लेकिन कंस्ट्रेंट तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम सिर्फ 3 बार तोल सकते हो, ठीक है, जस्ट 3 टाइम तुम उस तराजू का यूज कर सकते हो। अब तुम ये कैसे करोगे, यू हैव टू एक्सप्लेन। और वन मोर थिंग कि तराजू, हाँ, we will ask यार, we will ask you in a minute, please wait यार, please wait, लेट अस कंप्लीट। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? प्लीज वेट यार, अभी मत बोलो प्लीज। आ रही है, आ रही, ओके। सो जो तराजू के जो बेसिस है, मतलब जो वो उसके डिस्क रहती है जिस पे हम सामान रखते हैं, वो बहुत बड़ा है, उस पर एक बॉल भी रख सकते हो, 2 बॉल, कितनी बॉल रख सकते हो, ये और है, ये नहीं कि तुम बस एक ही बॉल रखो ना। ये हिंट भी है तुम लोगों को कि एक तराजू के एक साइड पे, मतलब आइदर साइड, दोनों साइड पे तुम ज्यादा बॉल्स भी रख सकते हो, तो तराजू बड़ा है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब था। सो और बॉल्स का साइज सेम है, तुम देख के नहीं बता सकते हो, राइट, तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा। सो अब 12:49 हो चुका है, मैंने हेलो। हाँ, अब बोलो यार, अब बोलो प्लीज शुभम, प्लीज जज इट। सर 3 बॉल दोनों तराजू पे रखेंगे पहले, राइट, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर से हो ना? आप फर्स्ट ईयर से हो ना? हाँ। ठीक है, आपने खुद से बनाया है मेथड सॉल्यूशन? हाँ, मैंने अभी खुद से सोचा है। ठीक है, बताओ यार, प्लीज बताओ। 3 बॉल दोनों तराजू पे रखेंगे पहले, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि अगर इक्वल वेट का होगा तब तो वो दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और उसमें एक 7वां बॉल बचेगा। तो क्या होगा कि अगर उसको 2 बार ट्राई करेंगे तो सारा बॉल तो आ जाएगा, और एक जो सबसे ज्यादा वेट वाला रहेगा वो तो बच जाएगा, तो उससे तो वो हो जाएगा ना, जो सबसे ज्यादा वेट का है वो तो आ जाएगा। हाँ, मगर अगर मान लो कि सेम वेट नहीं हुआ, एक भारी हो गया तराजू, एक ऊपर पर, एक जो पार्ट है उसका एक ऊपर है एक नीचे, सेम वेट नहीं हुआ, तो क्या करोगे? सेम वेट, अगर दोनों 3 बॉल्स का सेम वेट होता है, तो जो 7वीं बॉल जिसको आपने तोला नहीं है, जिसको आपने वेट नहीं किया, वो भारी है, क्योंकि बाकी सबका सेम है। मगर मान लो कि सेम वेट नहीं होता है, एक साइड जो 3 बॉल, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, अच्छा अगर सेम, हेलो सर, एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। जो बाकी के 2 बॉल बचे हुए, मतलब 3 बॉल यदि इक्वल वेट के आ रहे हैं, यदि दोनों साइड इक्वल हो जाता है, तो 3 में से 2 बॉल को हमें ना वेट कर लेंगे, यदि उन दोनों का वेट इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब जो 3rd बॉल बचा है वो ही भारी है। यस सर। एक मिनट यार, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। रजनीश प्लीज कंप्लीट। तुम्हें आता है रजनीश?
यस सर, यस सर। तो फिर सर जो हाँ जो ज्यादा वेट का होगा ना वो तो उस तरफ वो झुक जाएगा, तो उसमें से हाँ। तो पॉइंट आउट हो जाएगा ना कौन सा बॉल ज्यादा कैसे भारी है, उसको हम कैसे? लोग कैसे कैसे बता रहे तो फिर वो तो साइड हो जाएगा, तीन बॉल कौन साइड हो से जाएगा ना, तीन ही कौन बॉल से में तीन डाउट है बॉल? ना। जो हाँ सही ज्यादा है। भारी होगा वो तो झुक हाँ जाएगा सही उधर, है। तो उसमें सही से है। हम लोग निकाल लेंगे कौन सा भारी है ज्यादा। कैसे कैसे निकालोगे? फिर उसके तीनों तीन तीन आ गए तुम्हारे पास जिसमें से हो सकता है, अब कैसे करोगे? मैं बताऊं? So can I say? So can I say? Excuse me, sir. नहीं, Sir, can I tell? So can I say? Sir, ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट sir, जो विशाल विशाल प्लीज यस विशाल। विशाल। सर हम पहले तीन तीन बॉल्स को रखेंगे और एक बॉल को अलग रख लेंगे। अगर वेट इक्वल आ गया इसका मतलब जो एक बॉल साइड में रखी है वो सबसे हैवी है, और अगर वेट अनइक्वल आ गया तो जो अनइक्वल साइड में वो थ्री बॉल्स हैं उनमें से दो बॉलों को एक एक रखेंगे और उसमें उनमें से एक बॉल को साइड में रखेंगे। अगर फिर वेट इक्वल आ गया तो मतलब इसका मतलब जो बॉल साइड में रखी है वो हैवी है, और अगर वेट अनइक्वल आ गया तो हैवी वाली बॉल पता लग जाएगी। राइट। अनइक्वल आ गया तो हैवी बॉल कैसे पता लगेगी? अरे अगर जिसका वेट हैवी होगा वो नीचे चला जाएगा, और अगर वेट इक्वल आ गया तो बॉल साइड में जो रखी है मतलब वो सही सबसे है। ज्यादा हैवी है। ओके राइट ओके राइट। सही। और Yes, नेक्स्ट you're कौन बोल रहा था? देयर वाज अ गर्ल ओपी गेमर नेम्ड, या प्लीज यू कैन सर टेल। मैंने भी सेम मैसेज था बताया था तो इनसे पहले ही बोला है। आपका, सेम था सॉल्यूशन? जी सर। ओके बट विशाल ने पहले माइक ऑन किया था, राइट? ओके कोई ओके, बात no, no. नहीं, दैट्स नॉट अ कंपटीशन। आप लोगों को कंपटीशन करना है एक दूसरे, आप लोगों को पता है कि आपके केपेबल लोग हैं यहाँ पर मीटिंग में, तो आप लोग आना लेट्स कोड में। गीक्स का जो जी सर। कोड या है ना, कोडिंग जो हम बोलो। लोग पढ़ाते हैं उसमें कॉन्टेस्ट लेते हैं, उसमें भी आना। प्लीज माइक म्यूट कर लो यार प्लीज अपना। ये तुमको कॉम्पीट कराने के लिए नहीं था, ये जस्ट ये बताने के लिए था कि लॉजिक्स किस टाइप के यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है? इसमें कोई अभी हमारे पास कुछ पढ़ाने का कुछ डायग्राम है नहीं, नहीं तो हम आपको बोलो इसको ना। अच्छे से एक्सप्लेन बोलो। करते जिसको नहीं समझ में आ रहा है। शिवानी प्लीज म्यूट योर माइक इफ पॉसिबल। Okay, okay. शुभम, So कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, और अदरवाइज व्हाट यू से लेट्स फॉर कंटिन्यू। just ask them, is it clear to everyone or the like सबको सॉल्यूशन समझ इज आ गया? क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सबको say yes or no in the comments. यस सर। if Yes, if you sir. want explanation then only say please repeat, otherwise okay. ओके फाइन, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। So Okay. Alok, you can go ahead. Yes, Alok, please. Okay, good afternoon, everyone. My name is Alok Dwivedi. I'm a computer science student from second year. जैसे आप लोगों ने देखा, इंटरेक्शन कितना लाइव चल रहा है, सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सर लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे जो लॉजिक बिल्डिंग थे, इन सब से आपको ये तो पता चल गया होगा कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जस्ट टेल मी वन थिंग दैट हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग? जस्ट रेज योर हैंड। सब लोग कंफर्टेबल हैं इंग्लिश पे? मैं हिंदी में बोलता हूँ। आप में से कितने लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में पता है या कोडिंग के बारे में पता है? कुछ ओके भी गुड। बेसिक भी हो सकता है वो। हाँ, नॉट अबाउट बेसिक मतलब सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको केवल ये पता है कोडिंग होती क्या, नहीं पता, आप हाथ रेज मत करिए, हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। देखिए, जैसे होता क्या है कि ये तुमने, जैसे सर ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्वेश्चन तुमने अपने दिमाग से सोच के अपने पेन पेपर पे लिख लिया कि हाँ हम इसको ऐसे 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 करेंगे तो ये चीज हमारी ऐसे हो जाएगी, ठीक? अब वही चीज हमें कंप्यूटर को समझानी है। अब जैसे तुम कंप्यूटर में अपना कैलकुलेटर ऐप यूज करते हो, कैलकुलेटर ऐप में तुम 2 किया, प्लस किया, 3 किया, इक्वल दबाया, तुम्हारे पास 5 आ जाता है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि आपने 2 क्या है, 3 क्या है, प्लस क्या दिया है, उसको करना क्या है, ठीक है? और कंप्यूटर को तुम सब लोग जानते होगे, कंप्यूटर बाइनरी पे वर्क करता है, 1010 पे वर्क करता है। हमें आती है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़। अब
उस काम को करवाने के लिए या हेलो तो उसकी आलोक, लैंग्वेज में बोलें, आलोक क्यों या फिर कंप्यूटर you इतना नॉलेजेबल हेलो हो कि हमारी लैंग्वेज समझ सके। तो कंप्यूटर तो हमारी हेलो लैंग्वेज आलोक समझ नहीं सकता, ये पता है। आलोक और हम बोल सकते हैं उसकी लैंग्वेज में, लेकिन क्या आप सोच सकते हो, सर जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम 4 होगी को अगर उधर। आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में अगर आप 4 को रिप्रेजेंट करोगे तो 0100 में रिप्रेजेंट करोगे। 1 से लेकर 9 तक की गिनती को अगर तुम बाइनरी में रिप्रेजेंट करने जाओगे ना 4 बिट में, तो उन्हीं को याद रखना एक बार मतलब स्टार्टिंग में टफ हो जाता है। तो तुम समझ सकते हो कि अगर हम लोग बाइनरी में अपना सारा काम बाइनरी में करने लग गए तो वो कितना हमारे लिए, तो हर एक चीज को थोड़ी ना याद रखोगे कि ये 0 में 1 में कैसे स्टोर हो रही है। लैंग्वेजेस बना सी, जो सर अभी बात बता रहे थे, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी। Okay, so am I audible? Maybe यार आलोक का Yes, आवाज sir, you कट are. गया शायद। या सो आलोक क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आपने अपने ब्रेन से सोच के बताया, तो आपको प्रोग्रामिंग ये नहीं, आपको नहीं सोचना है, आपको ऐसा काम करना है कि आप कंप्यूटर को मजबूर करो सोचने के लिए सेम तरह से। मतलब आपको कंप्यूटर को बताना है कि तू कैसे सोचेगा। आई एम रेफरिंग कंप्यूटर एज अ पर्सन। इट्स लाइक अगर आप चाइना जाते हो तो आप ट्रांसलेटर लेके जाते हो बिकॉज यू डोंट नो चाइनीज। ओके, आपको कोई भाषा नहीं आती है तो आप एक किसी बंदे को ढूंढते हो ना कि यार, तो प्रोग्रामिंग जो है ना, या हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो दैट्स लाइक देयर इज अ, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा नहीं समझता है, तो हम एक ऐसी भाषा सीखते हैं जो कंप्यूटर और हमें दोनों को समझ आए। तो दैट्स व्हाई वी लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डू प्रोग्रामिंग। ओके, सो दैट्स ऑल आई गेस about the programming, I think. Is it clear? Sorry, Alok, there was a connection problem for you from your side, so that's why we spoke in between. सर So अब सही है मेरा नेटवर्क? Yes, yes. अभी नॉइस आ रहा है किसी के उधर से, शोभित आई गेस। Now it's fine. हाँ, तो गौरव सर ने आप लोगों को ये कंफर्म कर दिया कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है। अब यहाँ पे बात आती है कि कई लोग होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता, सबको नहीं होता, ठीक है। जिसकी कंप्यूटर साइंस रही होगी 11th-12th में, या जिसने पढ़ रखी होगी उसको आती होगी। अब तुम कुछ भी करने जाओगे तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, ये तो पता ही है। आप जैसे ही आप, हम लेट्स कोड में करते क्या है, आपको हम लोग C++ लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है। इसमें से कई लोगों का ये डाउट होगा कि C++ क्यों सिखाते हैं, आप C++ से क्यों कर रहे हैं। कई लोगों ने पाइथन कर रखी है, वो सोच रहे होंगे पाइथन से क्यों नहीं करते, हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी एक रीजन है कि C++ जब आप इंडियन प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो जो आपकी रिक्रूटर कंपनी होगी वो रिकमेंड करती है कि आप C++ या जावा में ही कोड करें, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। आपको जो भी काम करना होता है आप थोड़ा सा कोड लिखते हो, वो काम आपका हो जाता है। और C++ में आप अपना लॉजिक यूज करते हो, और कंपनी चाहती है कि आप अपना लॉजिक यूज करें क्योंकि उसी के बेसिस पे वो आपको जज कर दिए, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है कि लेट्स कोड हमारे लिए, RJT गिग्स हमारे लिए क्या करता है। तो वही बात है कि लेट्स कोड या RJT गिग्स आपको कोड करने का एक रोड मैप देगा, आपकी क्लासेस लगेंगी, आपके डाउट रिमूव होंगे, और बहुत सारे लाइव इंटरेक्शंस होंगे। जस्ट लाइक जो सीनियर्स हम लोगों के जो पास आउट हो गए, इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, है ना, उन लोगों के साथ तुम्हारे लाइव इंटरेक्शन होंगे। हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है, ये सारी चीज़ें वर्कशॉप के थ्रू या फिर मीट के थ्रू, या फिर अगर ऑफलाइन पॉसिबल होता है तो ऑफलाइन के थ्रू ऐसे करते हैं, ठीक है। और आप सब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग लेट्स कोड में वर्क कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स कोड में वर्क करने के लिए क्या होता है, हम आपकी क्लासेस कराएंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, मई के आसपास होगी उसमें। और अच्छा, एक चीज़ और होता है, बीच बीच में हम बहुत सारे कंटेस्ट भी कराते रहते हैं। कंटेस्ट कराएंगे, उनमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होल्डर होंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट वगैरह ऐसे करके इनकरेज करते रहते हैं। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी मई में, उसमें आपसे मतलब कोड भी कराया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा।
उसके थ्रू आप आरजेटी गीक्स में आ सकते हो, ठीक है। और लेट्स कोड की जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट होने की टेंटेटिव हैं, बट अभी कोई इसका कंफर्म नहीं है। हम आपको व्हाट्सएप पे या फिर आपका ऑफिशियल ग्रुप के थ्रू जब से क्लासेस मतलब 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली होंगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। और किसी का भी कुछ डाउट है, जैसे अब ये तो समझ में आ गया होगा कोडिंग क्या है, कोड क्यों करते हैं हम लोग, ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं, ये सारा चीज़ तो समझ में आ गया होगा ना। लेट्स कोड हमारे लिए, आरजेटी गिग्स हमारे लिए क्या करेगा, ये सब कुछ समझ में आ गया। Yes, sir. यस एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यस सर। कुछ भी छोटा सा भी डाउट। ओके, सो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। शुभम, कैन यू प्लीज ओपन दैट टेबल? यस, कैन आई गो फर्स्ट ऋषभ? या श्योर श्योर गौरव। ओके, सो मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। लाइक आप लोगों ने 1 रुपए का सिक्का देखा है, आपने 2 रुपए का सिक्का देखा है, ओके। तो आपके पास एक 1 रुपए का सिक्का, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एक दैट्स फॉर ऑल, जो भी पहले आंसर करते दैट्स लेट्स सी। तो एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है, ओके। और आपको क्या करना है, वो जो दोनों सिक्के हैं ना, आपको ऐसे बहुत सारे सिक्के दे रखे होंगे। 1 रुपए के कुछ n कॉइन्स होंगे और 2 रुपए के कुछ m कॉइन्स होंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है ना, वो दोनों सिक्के किन्हीं 2 लोगों में आपस में बांटने हैं, ताकि मतलब उनका जो सम है ना, ताकि उन लोगों को बराबर बराबर पैसे मिले। फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर कि आपके पास 8 रुपए हैं, मान लो आपके पास 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, और या मान लीजिए 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, और 1 रुपए का मान लीजिए आपके पास 2 सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही इन दोनों कॉइन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ऐसे 2 बच्चों में बांटना है, 2 बच्चों को, ताकि उनको बराबर पैसे मिले। 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, और ऐसे बांटना है कि दोनों को बराबर मिले। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है सर एक को 2m देंगे जिसके पास एक रुपए का कॉइन है, और एक को m देंगे। यार बट 1 रुपए का सिक्का है तो सम कैसे बराबर कैसे होगा? तुम 1 रुपए का दे दिए और तुम किसी को 2 का दे दे, 2 वाले के पास ज्यादा हो जाएगा ना। सोचो। दिवाकर दिवाकर पहले फर्स्ट ईयर हो जाए फिर करता है। आई नो तू बता देगा भाई। एक को 1 रुपए का 2 सिक्के देंगे और एक को 2 रुपए का 1 सिक्के देंगे। एक को 1 रुपए का भाई, मैंने बोला n कॉइन्स है, n और m के टर्म्स में क्या एक को क्या मतलब एक को 1 रुपए का 2 सिक्के देंगे और एक को 2 रुपए का 1 ही सिक्के देंगे, तो दोनों के पास इक्वल हो गया। हाँ, ओके, दैट्स गुड। इट मींस तुम बोल रहे हो कि एक को n इंटू समथिंग दे देंगे। मुझे एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, बिकॉज़ मेरे पास वही वाला n और m कॉइन्स है मेरे पास, ओके। n 1 रुपए के हैं, m 2 रुपए के हैं, लिख लो। n का 1 है, m का 2 है, और तुम्हें इनका ऐसे बांटना है ताकि सबके पास बराबर पैसे, 2 बच्चों में बांटना है और दोनों के पास बराबर पैसे हो, ओके। तो अब मुझे एक जनरल सा फॉर्मूला दे दो कि कैसे करने वाले। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे बतानी है, तो वो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। बहुत सिंपल सा है, 2 रुपए के 2 सिक्के और ओके 2n + m, क्वाइट 3m/4, ओके ओके। और कोई बताएगा? ये फर्स्ट पे किसने किया था? फर्स्ट वन कौन था? एक सेकेंड, और 2 मिनट और ले लो, 2 मिनट और ले लो। ओके, हाँ, लो योर टेक योर टाइम। आप लोग के माइंड में पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि क्या हम बांट भी सकते हैं, क्या हम इक्वल बांट भी सकते हैं? पहला तो ये आना चाहिए। किसी ने मुझसे ये चीज नहीं पूछी, क्या सर हम बांट सकते हैं? मैंने बोला कि बांटना है, सबने सोचा कि हाँ बांटना है। किसी ने ये सोचा कि क्या हम बांट सकते हैं? पहला वो चीज माइंड में आना चाहिए कि क्या हम इक्वल दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं। वैसे मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूंगा, लाइक इसको एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा देर नहीं, तो प्लीज n + m
बाय 2, या ये जिसने n प्लस m बाय 2 यार, दैट्स नॉट द केस। n प्लस m अगर ऑड होगा तो कैसे बांटोगे? या सॉरी, इन बिटवीन आई वांटेड टू से कि अगर किसी को भी इन क्वेश्चंस को समझने में या फिर करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये मत समझना कि आप गीक्स में नहीं आ सकते या फिर आप यू आर नॉट एलिजिबल और आप लोग नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं अपना केस बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था आरजेडी, तो मेरे सीनियर्स भी ऐसे ओरिएंटेशन होता गीक्स का, क्योंकि गीक्स का क्लब हमारे कॉलेज में बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो मैं मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। जो सीनियर्स पूछ रहे थे, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे मेरे बैच में, वो जैसे अभी आपने देखा जिन लोगों ने आंसर दिए, प्रशांत ने आंसर दिया, अंकुश ने आंसर दिया, रोहित ने आंसर दिया सबसे पहले। तो ये मेरे ऐसे बच्चे मेरे आंसर दिए जा रहे थे और मैं नहीं दे पा रहा था। बट मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, मैं गीक्स की क्लासेस में गया, लेट्स कोड में गया। मुझे पता था कि नहीं मुझे आ रहा है, यही तो मुझे सीखना है, नहीं आ रहा तो बस डिमोटिवेट नहीं होऊंगा उससे, मैं सीखूंगा जो मेरे सीनियर सिखाएंगे। तो मैं गया और मैं बहुत आसानी से रिक्रूट हो गया, गीक्स के अंदर आ गया। राइट, तो तुम लोग अभी मेहनत करो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के एंड में जैसे आपके आलोक ने बताया था कि रिक्रूटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ओनली ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन इन द लेट्स कोड प्रोग्रामिंग कोर्स, राइट। उसमें जो कॉन्टेस्ट वगैरह होंगे उसके बेस पे आपको जज किया जाएगा, आपको इंटरव्यू होगा प्रॉपर, हम लोग लेंगे, आपके फोर्थ ईयर लेंगे उस टाइम पर जो रहेंगे। सो आप लोग डिमोटिवेट नहीं हो। और सो मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरी भी आप जैसी हालत थी स्टार्टिंग में, कि हम लोगों को, मुझे गौरव आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग को कोडिंग भी नहीं आती थी 12 तक। तो डोंट फील लाइक के ये लोग हमसे बहुत आगे हैं, हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम भी आपके पोजीशन पे थे, आपसे नीचे थे बल्कि। सॉरी गौरव, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो आई गेस कि यार ज्यादा कोई नहीं बताया, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर के करीब हैं, बट लाइक किसी ने पहले ये चीज नहीं सोची कि हमारा होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि यार अगर 1 रुपए का सिक्का है उसको 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते ना, 0.5 कैसे बांटोगे? नहीं दे सकते ना, या तो किसी को 1 ही का दे सकते हो या तो किसी का 2 ही का दे सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन समझाता हूँ, लेट इट बी। ओके, सो द सोल्यूशन इज कि अच्छा दिवाकर था, दिवाकर कैन यू प्लीज बता सकते हो? सर इसमें फेलिंग कंडीशन हो गई ना, वही ऑड नंबर ऑफ अगर वो है तो टोटल कॉइन्स का सम अगर ऑड है, 2 रुपए का है तो दो ऐड करेंगे उसको, और 1 का है तो 1 करेंगे। अगर वो ऑड है तो वो फेलिंग कंडीशन होगी, अगर फेलिंग कंडीशन नहीं है तब हम बांट सकते हैं। हाँ, तब हम बांट सकते हैं, यस। तो पहली चीज तो यही आनी चाहिए थी आप लोगों के में कि क्या हम बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, लाइक अगर मान लो मैं किसी को 2 रुपए का 1 सिक्का दे देता और 1 रुपए का 1 भी नहीं होता आपके पास, 1 रुपए का 0 होता और 2 रुपए का 1 होता, तो कैसे बांटते? तभी तो सम ऑड है, तो सॉरी सम इवन है, तो बांट सकते थे। इमेजिन लाइक एक राम है एक श्याम है। 2 बंदे हैं, राम श्याम, और इन दोनों को आपको बराबर पैसे बांटने हैं। और एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए को तोड़ नहीं सकते, 2 रुपए को तोड़ नहीं सकते, तो आप कैसे सोचोगे? अब तो ये कंडीशन आ गई। तो इसको बोलते हैं एज केसेस। ये होते हैं हमारे एज केसेस, लाइक यही हमें प्रोग्रामिंग में सोचने होते हैं, यही हमें कॉन्टेस्ट में सोचना है, यही जब हम कंपनी में काम करेंगे तब सोचना है कि क्या मैं जो कोड लिख रहा हूँ या जो मैं चीज सोच रहा हूँ क्या वो कितनी सही है। मैंने उसमें एज केस सोचा। एज केसेस लाइक जैसा ये एक एज केस था, 1 रुपए का एक भी सिक्का नहीं है, 2 रुपए का 1 सिक्का है, तो कैसे बांटोगे? सम तो इवन आ गया ना, आपने सम के थ्रू सोचा, तो यहाँ आप गलत हो गए। तो आपको यही थिंकिंग डेवलप करनी है और लेट्स कोड के क्लासेस के थ्रू आप यही चीजें डेवलप करने वाले हैं, ओके। बिकॉज हम आपको यही चीजें सिखाएंगे, सारी चीजें। अगर आपको नहीं आ रहा है दैट्स गुड यार, नहीं आता बहुत लोग, सबको नहीं आता, हर कोई अच्छे उससे नहीं होता, मैं भी नहीं था। यू गाइज आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखनी है। तो आई गेस कितने लोगों को ये चीज समझ आ गया अभी? देखो सबसे पहले कैसे करना है ना, आपको जितने सिक्के हैं आप वो ले लो, 1 के कितने सिक्के हैं वो ले लो, और 2 के कितने सिक्के हैं वो ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो 2 को 2 से एंड 1 को 1 का, उन दोनों का सम ले लो। अगर सम इवन है तो आप बांट सकते हो। और इवन में भी कंडीशन लगेगी क्या? इवन में कंडीशन ये लगेगा कि यार आपका जो सम आया, वो सम आया उसमें जो अगर क्या सिक्के, जो 1 का सिक्का और 2 के सिक्के हैं उनका काउंट कितना है, क्या वो 1 से ज्यादा है? क्योंकि अगर मान लो 1 के सिक्के 2 के जो सिक्के हैं, क्या उनका जो 1 का काउंट है, जो सिक्के हैं उनका काउंट क्या 0 से ज्यादा है? क्योंकि अगर एक भी सिक्का 0 हुआ
और या फिर वन का मान लो एक का सिक्का ऐसा हुआ कि एक का सिक्का एक है आपके पास और दो का एक है, तो भी सम आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपका कंडीशन से ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ट्रू नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे एज केसेस लगाने पड़े। दैट्स आई वांट टू क्या कितने लोगों को क्लियर हुआ, समझ आया? यूज इफ एल्स, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, समझ आया? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। नहीं सर, नहीं आया, एक और बार बताओगे आप? हाँ श्योर। ओके, एक और यार, नो प्रॉब्लम, अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है ना, लेट्स कोड में हम सब क्लियर करेंगे आपका। सो अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाने दो, फिर सारी डाउट्स आपके सीनियर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, राइट? सो ठीक है, जिसको नहीं आया ना वो ना अपना वो करना, इसको ना सम के बेसिस पे सोचना, दो सारे सिक्कों का ऐड करना, उन सारे जितने भी सिक्के हैं उनका सम लेना और उनके सम के बेसिस पे सोचना, आपको आ जाएगा। थोड़ा टाइम देना, आ जाएगा। यही आपको डेवलप करना है, सोचना कितनी देर तक आप बैठ के क्वेश्चंस को सोच सकते हो, यही चीजें आपको डेवलप करनी है। टेक योर टाइम, और नहीं आएगा तो हम यहीं पे हैं, कभी भी ग्रुप पे पूछो, विल रेडी टू आंसर। ओके सर या आप लोग का जो ओरिएंटेशन ग्रुप है ना, उसी को हम लेट्स कोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैं अभी डाल देता हूँ, आप लोग उस पर व्हाट्सएप अपना नंबर दे देना, हम आपको ग्रुप पे ऐड कर देंगे। सो डू रजिस्टर फॉर द सेम, इट्स कंपलसरी। या प्लीज से व्हाटएवर यू सेइंग। सर क्लास वर्चुअल होगी या फिर ऑफलाइन मोड में होगी? ये चीजें चलो अभी Q&A में करते हैं, सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो चीजें रह गई हैं हम आपको पहले जो बताने आए थे एटलीस्ट वो कवर अप कर दें, फिर हम आपके Q&A में सारे डाउट्स ले लेंगे। ओके ओके सर। या मोस्ट प्रोबेबली हमारा कंटेंट हो गया है, हिमांशु? यस सर। ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है आज का एजेंडा। यस सर। सर एनी मोर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क? या अभी वो इनसे पूछना चाहिए क्या? अभी टाइम है अपने पास? वो वाला जो क्वेश्चन था वेजिटेबल्स वाला, कर सकते हैं सर। ओके शुभम, तुम आप लोगों की कोई क्लास या फिर कोई आपको लंच वंच तो नहीं करने जाना, हॉस्टलाइट्स? यस सर, जाना है सर। जाना है यस तो ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ लो, एंड करते हैं फिर। ठीक है, ओके आप अपने क्वेश्चंस पूछ लो, एंड करते हैं। और किसी के जो भी क्वेश्चन है तो वो चाहे तो माइक पर बोल सकता है या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। जो लेट्स कोड जो आपको सामने दिख रहा है, कोड शेफ की बोतल है, टी शर्ट है, बैग है, ये हम जो हमारे लेट्स कोड में आता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम एज अ देते हैं विनर्स को, कॉन्टेस्ट जो हम कराते हैं। या सो या नाउ टाइम फॉर Q&A। आप लोग माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने मना किया था बट आदर्श का क्वेश्चन है, इसकी सर प्रॉपर क्लासेस लगेंगी बेसिक से? हाँ आदर्श, पूरी आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाया जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पूरी बेसिक से सिखाई जाएगी। आलोक, आई थिंक यू कैन आंसर दीस डाउट्स। यस सर। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ सबको, मेरी वॉइस क्लियर है ना अभी? हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये तो बता दिया तुमको कि RJIT गिग्स तुम्हारे लिए क्या करेगा। तुम लोगों में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम मतलब कोडिंग सीखें ही क्यों? ये भी क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें जॉब करनी है, वेब डेव, ऐप डेव, कुछ भी करना है, सब मतलब कुछ भी तुम करोगे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो तुमको कोड करना आना चाहिए, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बहुत सारी लैंग्वेजेस जो आपको सीखनी पड़ेंगी आगे, लेकिन स्टार्ट तो आप किसी न किसी से करोगे। जैसे हमने बचपन में हिंदी से स्टार्ट किया था, आज हमको इंग्लिश भी आती है, तमिल भी आती है, कन्नड़ भी आती है, ठीक है। अब उसमें से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये सर ऐसा करा क्यों रहे हैं? तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, तो थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारे सब्जेक्ट्स आएंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है, और आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो जब तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने जाओगे ना, तो वहां पे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर से मतलब लिंक लिस्ट, स्टैक यूज, ये सब पढ़ाए जाएंगे। तुम्हें बेसिक सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग का, रिकर्जन कैसे काम करता है, इफ एल्स व्हाइल लूप वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये पॉइंटर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें तुमको नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि तुम खुद समझ रहे हो कॉलेज का काम होता है केवल और केवल कोर्स कंप्लीट कराना। और जब तुम DSA की क्लास में बैठोगे और तुम्हें लिंक लिस्ट का कोड दिखाया जाएगा या लिंक लिस्ट की एल्गोरिदम बताई जाएगी, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये और सेम यही चीज होगी तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी। इसलिए तुम्हें ये क्लास करना मस्ट है। मतलब हम लोगों के हिसाब से, जैसे हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए क्लास अरेंज की, हमें उसका प्रॉफिट मिला,
तभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत जरूरी है। आप अभी यहाँ पे नहीं करोगे तो फिर इधर उधर करोगे, फिर मतलब फिर क्या होता है ना, सब छूटता चला जाता है। बहुत सारे ऐसे सेकंड ईयर में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता कि अच्छा मतलब क्लासेस चल रही हैं ये, या फिर वो स्किप करते जा रहे हैं, देख करके भी अनदेखा कर दे रहे हैं, तो फिर उनको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तुम खुद समझो, अगर तुमको एबीसीडी पढ़ाई नहीं गई होती तो तुम्हें एबीसीडी को मिलाकर के जो दो दो वर्ड्स बनते, एबीसीडी को मिलाकर के दो वर्ड्स का एक मतलब दो कैरेक्टर का एक वर्ड बनता है, तीन कैरेक्टर का वर्ड बनता है, सारी चीजें बचपन में सिखाई जाती है ना। वो चीजें तुम्हें नहीं समझ में आएगी जब तुम्हें एबीसीडी ही नहीं आती होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको निग्लेक्ट मत करना, सब लोग प्रॉपर क्लास ज्वाइन करना, बहुत बहुत हेल्प करेगा। और कोई भी मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से हिंदी मीडियम से कौन कौन है? जस्ट रेज योर हैंड। हाँ ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो ऐसा सोचा करते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, फिर जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह से है ना, वो थोड़ा एडवांस हैं। तो तुम समझ लो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ये जैसे ऋषभ सर ने खुद बताया कि ऋषभ सर को भी नहीं आती थी प्रोग्रामिंग, मुझे खुद भी नहीं आती थी। मेरी तो 8th के बाद से कंप्यूटर साइंस थी ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऋषभ सर को आप आज देख रहे हो, वो आरजेडी गिग्स के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने मेहनत की, गिग्स में रिक्रूट हुए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम कोड नहीं कर सकते, कर सकते हो। स्टार्टिंग तुम कभी से कर सकते हो। स्टार्ट तभी मतलब जब जब वो है ना, जब जागो तब सवेरा वाली बात। तो जैसे ही तुमको ये समझ में आने लगता है कि ये जरूरी चीज है, तो तभी तुम उसको स्टार्ट कर दो। और अगर अभी 4-5 महीने बाद ये सारी चीजें स्टार्ट करोगे, तुमको प्रॉब्लम होगी। तुम्हारा जो बैचमेट है उसको एरे तक आता है और तुमको अभी नॉर्मल सिंटैक्स नहीं आता सी प्लस प्लस का। वो सारी चीजें फिर तुमको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो तुमको इस चीज का बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये गिग्स की क्लासेस क्यों कराई जा रही हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, सर क्लास इससे ऑनलाइन related होगी कोई या भी फिर क्वेश्चन हो? ऑफलाइन? देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन में ऐसा है ना, आप लोग की क्लासेस कितने बजे तक रहती हैं? 4:30। कॉलेज क्लासेस इन कॉलेज 4:30 तक? यस सर। यस सर। 4:30 तक तुम्हारी क्लासेस रहती हैं। और फिर जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जो बस फैकल्टी बस से आते होंगे, डबरा या फिर ग्वालियर, है ना ऐसे। यस सर। यस सर। तो अगर 4:30 बजे यस सर। 4:30 बजे आप मतलब फ्री हो गए और 5 बजे बस जाती है, तो 4:30 से 5 मतलब आलोक आधा घंटे ही हुआ ना, तो आधे घंटे में आलोक तो कुछ नहीं होगा। Yes, आलोक sir. यार, मैं ये बोल रहा था कि जो अभी क्या है कि हमको गीक्स को इतना अच्छा माना जाता है कॉलेज में, और हम गीक्स को परमिशन मिल जाती है कि हम जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हम क्लास को छोड़ के गीक्स में बुला सकते हैं। जगदीश सर ये अरेंज करा देते हैं, तो आपकी टेंशन नहीं है। आप लोगों को टाइम आप कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होगा। ये मत सोचना आपको क्लास बंक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। कॉलेज ही आपको परमिशन देगा कि आप गीक्स में जाओ। आपका कोई फ्री टाइम हो या फिर कोई टीचर की क्लास आगे कर दी जाएगी, गीक्स की पहले कर दी, ऐसा कुछ ना कुछ जगदीश सर से हम लोग बात कर लेंगे। जगदीश माखजानी जो सर हैं एचओडी हैं जो सीएससी के, वही हमारे क्लब के फैकल्टी एडवाइजर हैं। सो आलोक, वो उसकी नौबत नहीं आएगी कि आपको कॉलेज के बाद लेना पड़ रहा है रुक के। सो इट विल बी वेरी इजी। No, actually in yeah, you are right, but चलो इसका अपन डिस्कस करेंगे। और आलोक प्लीज लेट देम नो अबाउट द बिट मास्क, क्या बिट मास्क होता है और पीसेट्स, राइट। और उसके बाद अब रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, फिर हम Q&A लेंगे। ऑफिशियली खत्म कर देते हैं ओरिएंटेशन सेशन, है ना आलोक? ओके ओके हाँ ओके। तो पीसेट और बिटमास्क के बारे में बता रहा हूँ। क्या होगा कि जब हम तुमको कोड करना सिखाएंगे, क्लासेस हमारी मतलब लगभग 1 महीने के आसपास हो जाएंगी, तो तुम लोगों की वो प्रोग्रेस देखने के लिए पीसेट 1 पीसेट 2 जैसे पिछले साल भी ऑर्गेनाइज हुए थे, सेम वैसे ही वो किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हैकर रैंक किसी न किसी पे या व्हाट्सएप पे ऑर्गेनाइज कर दिए जाएंगे। वहाँ पे जा करके बस आपको मतलब कोड लिखना है, सबमिट करना है ना। फिर उसको हम लोग जज करते हैं आपका कोड सही है क्या है। उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस आपको खुद समझ में आती है, हमें भी समझ में आती है ना। और बिटमास्क
बिट मास्क जो होता है, बिट मास्क होता है गीक्स के रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि मई के एंड में ही होगी गीक्स की रिक्रूटमेंट, जिसके थ्रू हम लोग भी गीक्स में रिक्रूट हुए हैं। तो उसके लिए बिट मास्क ऑर्गेनाइज होता है, कोडिंग राउंड होता है, उसमें भी आपको ऐसे ही 2.5-3 घंटे का ऐसे ही टाइम होगा, और आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे वहाँ पे आपको जाके कोड करना होगा, अपने कोड सबमिट करने होंगे, और उसके बाद सर ने बताया ये इंटरव्यू प्रोसेस भी होती है, इंटरव्यू भी लेंगे। तो तुम उन सब चीज़ों का मतलब सोचना कि क्या होगी कैसे होगी, वो सारी चीज़ें मैं मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको आगे आकर के क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके, सो इसका एंड रिजल्ट होता है कि आपको एक्टिव, अगर आपको कनेक्टेड रहना है अनाउंसमेंट्स वगैरह के लिए, आप ग्रुप में ऐड जरूर होना। जो रजिस्ट्रेशन लिंक हमने दिया है, और व्हाट्सएप का ग्रुप इनवाइट भी हम चैट बॉक्स में डाल देते हैं, हाँ विशाल ने डाल दिया है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी ये गीक्स का कब क्या इवेंट हो रहा है, राइट? तो डू जॉइन दिस ग्रुप। हाँ, और हम लोग पहले सिखाते हैं फिर रिक्रूट करते हैं। लाइक ऐसा नहीं करते हैं कि हम आप लोग आए और हम लोगों ने आपको जस्ट अपना रिक्रूटमेंट चालू कर दिया। हम लोग आप लोगों को तब रिक्रूट करते हैं जब आपको सबको एक लेवल पे लेके आते हैं। हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक सबको पहले सिखाएंगे, 1 साल पूरा लेट्स कोड क्लासेस चलेंगी, एंड देन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड आफ्टर दैट हम अपने रिक्रूटमेंट करते हैं। सो दिस इज आवर बेस्ट पार्ट कि हम पहले देखते हैं, हम पहले सिखाते हैं और उसके बाद ही रिक्रूट करते हैं आप लोगों को। सो डोंट थिंक कि हम लोग पहले से हमारा कोडिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है तो हम लोग का कैसा होगा। यू गाइस